Okay, so let's continue discussing more and more types. ठीक है? Yeah. So this would be our type number 9. Right now, I would say this is an important type, right? And this is based on boundedness. Boundedness of trigonometric functions, या दूसरा नाम भी दे सकते हैं बाउंडेडनेस और एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि व्हाट आर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ sin x एंड cos x, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ sin and cos -1 to 1, and extreme values of secant square and cosecant square. You see I'm using secant square, है ना? Remember secant square, जैसे कि secant -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, मैंने -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, अगर हमने इसको स्क्वायर कर डाला तो सारे नेगेटिव आ गया पॉजिटिव, तो 1 to infinity. secant square cosecant square का 1 to infinity रेंज, और tan x और cot x का तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? माने tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का 0 to infinity, ठीक है? So anyway we'll be using boundedness या extreme values of trigonometric functions in these questions, right? Okay, so आते पहला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1. sin raised to 6x is equal to 1 plus cos raised to 4 into 3x. I think we should have discussed, I'd like us to make way for next type actually, before we discuss this. Type 10, actually type 11 we should have discussed this before, and है ना? ठीक है. Anyway let's make it ये 9 है ना? 10 भी करेंगे, उसके बाद आएगा 11. Make it simultaneous equations. Simultaneous equations है ना? Simultaneous equations का मतलब जिसमें दो equations होंगे at a time, and you'll be solving two equations at a time, है ना? Simultaneous मतलब two equations at a time, ठीक है? So basically क्या है कि उसमें ऐसे कुछ रहेगा कि sin x is equal to sin alpha and cos x is equal to cos alpha, और हो सकता है इसके साथ साथ में आ गया tan x is equal to tan alpha. ठीक है? So remember any two of these three, ठीक है? So in such cases where we have two simultaneous equations, right? Any two of these three. Now in such cases इनका जनरल सॉल्यूशन रहेगा 2n pi plus alpha. अच्छा, why is it so? We'll understand this by considering a simple example, right? Let's consider this example. Sin x is -1 by 2 and tan x is 1 upon √3. ठीक है, let's try this question. ये देखो, sin x की वैल्यू है -1 by 2 और tan x की वैल्यू है 1 upon √3. अच्छा, क्या बेसिकली ये है sin, you can convert this in terms of sin x is equal to sin alpha and this tan x is equal to tan alpha, लेकिन रिमेंबर दोनों के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेम होना जरूरी है, isn't it? क्योंकि tan पॉजिटिव रहेगा यहाँ, tan पॉजिटिव which quadrants, फर्स्ट या थर्ड, sin नेगेटिव सेकंड या फोर्थ. So obviously we need to pick the most, or you need to pick the common quadrant here, which is basically third quadrant. माने दोनों इक्वेशंस के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा वो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट का, माने tan x is equal to
tan 1/√3 कब होता है? π/6 पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा π + π/6 which is tan 7 π/6 and same goes for sin as well. sin x is sin 7 π/6. ठीक है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में राजी होंगे। ठीक है, tan पॉजिटिव फर्स्ट, थर्ड, sin नेगेटिव सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो दोनों राजी होंगे, दोनों मिलेंगे कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस के लिए। अब सिंपली इसका जनरल सॉल्यूशन रहेगा 2n pi plus alpha which is 7 π/6 where n belongs to integers. अच्छा, now we need to understand why is it 2n pi? ये 2n pi क्यों आया? The point is very simple. ये देखो, ये हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में ही मिलेंगे, isn't it? So imagine कि you have reached third quadrant. So फिर से आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको पूरा 360 घूम के आना होगा। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। मैंने एक 2 पाई ऐड किया, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फिर से 2 पाई ऐड किया। मैंने एवरी टाइम वी ऐड 2 पाई, वी नीड टू ऐड 2 पाई, isn't it? या वी नीड टू सबट्रैक्ट 2 पाई। So either adding 2 pi or subtracting 2 pi. मैंने इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 2 pi ऐड या सबट्रैक्ट करो, मैंने इनडायरेक्टली 2n pi प्लस अल्फा। ठीक है, सो देखो इसमें बस एक ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो कीप दिस इन माइंड, जब दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगे, एक ये वाला इक्वेशन अलग, अब वो वाला इक्वेशन अलग, तो ना दोनों राजी कहाँ होंगे, वो कॉमन क्वाड्रेंट आपको ढूंढना होगा और उसके हिसाब से जनरल सॉल्यूशन बनेगा। सॉरी, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेगा, फिर जनरल सॉल्यूशन विच इज 2n pi प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वापस अपना 9 पे। अच्छा, तो sin raised to 6x is 1 plus cos raised to 4 px। ठीक है, अच्छा तो यहाँ बाउंडेडनेस कैसे यूज कर सकते हैं? हाउ कैन यूज एक्सट्रीम वैल्यूज हियर? आइडियाज, एनी आइडिया हियर? What do you think we should do? पहली बात, LHS में sin raised to 6x है, माने sin का स्क्वायर इनडायरेक्टली, और वैसे क्यूब भी तो है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि LHS में जो है sin raised to 6x ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और हम इसको ऐसे लिखेंगे sin raised to 6x जो है ये जरूर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, at the same time it is always less than or equal to 1, right? अच्छा, and what can we say about RHS? RHS देखो, cos raised to 4 3x, ये देखो इवन पावर है, ये भी किसके बीच में लाई करता हूँ? 0 और 1 के बीच में, लेकिन वहां 1 एडेड है, इसको 1 ऐड किया हमने। Now you see, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि LHS जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और RHS जो है उसका मिनिमम वैल्यू होगा 1, राइट? LHS का मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 1 और RHS का मिनिमम वैल्यू 1, इजंट इट? क्योंकि ये +1 है तो ये 1 से बड़ा ही होगा और ये हमेशा ना 1 से छोटा रहेगा, इक्वल या 1 से छोटा। तो ऑब्वियसली दोनों राजी कहाँ होंगे? अगर दोनों को जिंदा रखना है तो दोनों शुड बी इक्वल टू, एग्जैक्टली देयरफॉर sin raised to 6x should be equal to 1 and, है ना बीच में देखो, and 1 plus cos raised to 3x should also be equal to 1। अच्छा, sin raised to 6x 1 कब होगा? जब sin square x 1 हो, isn't it? और ये वाला जब cos raised to 4 3x वो 0, ओके। अच्छा, ये 0 कब होगा? जब ऑब्वियसली cos 3x 0 होगा, इज इट? अच्छा, sin square x 1 कब होगा? अरे अच्छा, sin square x 1 के लिए देखो अपना n pi वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, है ना? sin square x 1, इसको हम लिखेंगे sin square x is equal to sin square pi by 2, तो x is equal to n pi plus minus pi by 2, where n belongs to integers। ठीक है, अब देखो बीच में रिमेंबर एंड है,
और cos 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे, सही है? माने x इज 2n plus 1 into pi upon 6 where n equals to n. अब देखो इसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि बीच में तो एंड है, माने आपको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना होगा. हाउ डू यू फाइंड कॉमन सॉल्यूशन इन सच केसेस? तो उसके लिए ना अपने को एक काम करना होगा. we'll try to find some of the solutions. we'll find some solutions, है ना? जैसे कि इसके लिए देखो, इसके लिए मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है? तो इक्वेशन 1 के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे? you put n is equal to 0 plus minus pi by 2, n is equal to 1 pi plus pi by 2 pi minus pi by 2, या डायरेक्टली हम कर सकते हैं कैसे, ये वाले है ना, क्योंकि sin x 1 है तो sin x प्लस माइनस 1, तो pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 ये सारे होंगे प्लस माइनस ऑफ कोर्स, ठीक है? हम इजीली गेस कर सकते हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट सेकंड के लिए कैसे सॉल्यूशंस होंगे? पुट n is equal to 0 क्या आएगा? pi by 6. पुट n is equal to 1 क्या आएगा? 3 pi by 6 माने बेसिकली pi upon 2. अच्छा, ओके. पुट n is equal to 2 5 pi by 6. ओके. पुट n is equal to 3 7 pi by 6. n is equal to 4 9 pi by 6. 9 pi by 6 का मतलब 3 pi by 2. ओके, so do you understand? ये देखो pi by 2 है यहाँ, 3 pi by 2 है यहाँ. अच्छा, if you put n नेगेटिव क्या होगा? n नेगेटिव के लिए -1 डाला तो माइनस pi by 6, -2 डाला माइनस pi by 2 आ रहा है, तो माइनस pi by 2 भी है यहाँ. so what does it mean? अगर आप कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों के लिए कॉमन सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? ऊपर वाला. पक्का? श्योर? तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा, देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर वुड बी दिस, देयरफॉर x is n pi plus minus pi by 2. ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली ये भी एक तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा ही था, isn't it? ये भी सैटिस्फाई होना चाहिए और वो भी सैटिस्फाई होना चाहिए, है ना? दोनों भी सैटिस्फाई होना चाहिए था यार. और दोनों भी सैटिस्फाई होने के लिए रिमेंबर वी नीड टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन. उसके लिए ना वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द सॉल्यूशंस. ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था, यू नो, समवॉट डिफिकल्ट एज वेल. ठीक है, चलो और क्वेश्चन सॉल्व करें. ओके, अच्छा, मुझे अचानक एक क्वेश्चन का ये याद आया. हमने एक क्वेश्चन किया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, आई गेस, sin x minus sin x into tan x minus tan x plus 1 is equal to 0, ऐसे कोई क्वेश्चन किया था हमने, है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या हमने sin x कॉमन निकाला, तो ये 1 minus tan x आएगा, minus 1 plus 1 is, या जो भी, you know, there was a question something like this, है ना? so 1 minus tan x, तो 1 minus tan x into sin x plus 1 is equal to 0, तो sin x is minus 1 और यहाँ tan x is equal to 1. इसलिए जनरल सॉल्यूशन इजीली बनेगा n pi plus pi by 4, इसको कोई टेंशन ही नहीं है. whereas let's talk about sin x minus 1. या अगर इस क्वेश्चन में sin x plus 1 आया होता या minus 1, I don't remember, sin x minus 1 या plus 1 इस इक्वेशन के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि sin x minus 1 कब होता है? 3 pi by 2 पे, नीचे वाले माने pi by 2 पे ही होता है, और मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 पे. लेकिन इक्वेशन में कौन है? है ना? तो ये क्वेश्चन के लिए ये जो sin का जो जनरल सॉल्यूशन था वो रिजेक्ट हो जाएगा. सो यू नो, प्लीज मेक दिस करेक्शन, है ना? आपको जरूर मिलेगा ये वाला क्वेश्चन sin tan, हमने किया था जिसमें डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाएंगे. ये शायद से सेकंड या थर्ड लेक्चर में किया था हमने.
सो मेक श्योर कि यू हैव रिजेक्टेड दिस सॉल्यूशन। क्यों रिजेक्ट किया हमने इस सॉल्यूशन को? क्योंकि ये साइन +1 या -1 कब होता है? π/2 और मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, लेकिन इक्वेशन में कौन है? tan है, तो π/2 वाले सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, सो प्लीज मेक दिस करेक्शन। देयरफॉर प्रॉब्लम 3rd या 4th लेक्चर है ना, उसमें रहेगा फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। sin raised to 4x is 1 plus tan raised to 8x। क्वेश्चन नंबर 3, sin square x plus cos square y is 2 secant square z, है ना। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो x है, y है और z है, और सबके लिए ना आपको जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। Now we need to find general solution for all these questions. ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट, देखो इवन पावर, so we're dealing with positive real numbers here. Okay, fine. So what can we say about LHS? LHS में कौन है? sin raised to 4x है। अभी बात किया इस चीज के ऊपर। sin raised to 4x हमेशा less than or equal to 1 होता है, सही है। और RHS में कौन है? RHS में है 1 plus tan raised to 8x, और ये हमेशा greater than or equal to 1, सही है क्या? सही है। कैसे है? क्योंकि tan raised to 8x इवन है, tan, so tan raised to 8x माने इवन पावर ऑफ tan, उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है 0। जब ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा ओवरऑल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली दोनों राशि कहाँ होंगे? जब बोथ आर इक्वल टू 1। देयरफॉर sin raised to 4x is equal to 1 and 1 plus tan raised to 8x is equal to 1। अच्छा, sin raised to 4x 1 कब होगा? जब sin square x 1 हो, और यहाँ tan raised to 8x 0, माने यहाँ tan x 0, और ये तो आप जानते हैं, अभी बात की हमने n pi प्लस माइनस पाई बाई 2, और इसलिए क्या सॉल्यूशन है? x is equal to n pi, ठीक है। तो ये दोनों राशि हो गए क्या कहीं? आप सोचो, tan x 0 है तो sin x क्या होगा उस वैल्यूज पर? tan 0 हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x पर sin भी क्या होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि sin एंड tan they always become 0 for the same angle, isn't it? 0 पे 180 पे, क्योंकि tan के न्यूमरेटर पे कौन है? sin है। जब sin 0 होगा तब जाके tan 0 होगा, माने tan 0 है उसका मतलब sin भी, लेकिन यहाँ sin 0 है क्या? नहीं। माने ये दोनों इक्वेशन के लिए कोई कॉमन सॉल्यूशन है या हो सकता है क्या? नो। इसका मतलब these two equations cannot hold simultaneously। इसका मतलब इन इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, है ना। वेरी सिंपल, माने द मोमेंट वी हैव सीन कि tan x 0 दिस इंप्लाइज कि sin x इज आल्सो 0, लेकिन ये बोल रहा है कि sin x 0 नहीं है, इसका मतलब राइट है, नो सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट। ओके, अच्छा, LHS में कौन है? sin स्क्वायर x भी है और cos स्क्वायर y भी है। अच्छा, और RHS में
2 secant square z है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं, RHS के बारे में क्या बता सकते हैं कि ये हमेशा secant square z के बारे में क्या बता सकते हैं कि secant square z हमेशा अरे secant z -1 और -1 के बीच में लाइन नहीं करता, तो 1 से बड़ा, माने ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट, इनटू 2, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माने RHS हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब आते हैं LHS पे। यहां कौन है, sin स्क्वायर x है। sin स्क्वायर x हमेशा किससे छोटा होता है, 1 से, और cos स्क्वायर y भी हमेशा 1 से छोटा, माने ओवरऑल LHS जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2। तो बेसिकली क्या है कि LHS आया लेस देन और इक्वल टू 2 और RHS आया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब इन दोनों राशि कहां होंगे, 2 पे एग्जैक्टली, माने देयरफॉर 2 secant square z is 2, माने एक्चुअली secant square z is 1। अच्छा, secant square z 1 हो, इसका मतलब cos square z कितना होगा, 1। तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, z is रिमेंबर n pi प्लस माइनस cos square 0, माने z का जनरल सॉल्यूशन हो गया n pi, ये हो गया z का, ठीक है। एंड देखो sin स्क्वायर x भी तो 1 होना चाहिए, तो इसलिए क्या सॉल्यूशन आएगा, x is n pi प्लस माइनस pi upon 2, और cos स्क्वायर y भी तो 1 होना चाहिए, अब ये लिखिए कि y is n pi in belongs to, ठीक है, ये है आंसर, है ना। तो बेसिकली क्या है, यहाँ x और y है, ये दोनों अलग अलग है, बट रिमेंबर अगर यहाँ sin स्क्वायर x यहाँ cos स्क्वायर x होता, तो दोनों भी x x होते हैं, this could have been equal to 1 and 1 equal to 2, है ना। यहाँ x और यहाँ भी x होता ना, तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, क्योंकि रिमेंबर जब sin 1 होता है ना cos 0 हो जाएगा, जब cos 1 होता है कि sin becomes 0, क्योंकि उनका जो स्क्वायर का एडिशन इज ऑलवेज 1, है ना। ये यहाँ x से यहाँ y है करके हमने अलग अलग से बता दिया कि ये 1 से छोटा और ये भी 1 से छोटा, एनीवे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, दिस वुड बी अ नाइस क्वेश्चन। So what can you say about LHS? It is always and what about RHS? अच्छा, तो हम RHS के हिसाब से इनइक्वालिटी बनाते हैं। RHS में कोई cos रेज टू 5x है, लेकिन इसके बीच में रहता था हमेशा -1 और, क्योंकि ऑड पावर, माने ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, और ये वाला हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2, या हाँ लेस देन और इक्वल टू 2 तो है, बट एट द सेम टाइम इट इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि देखो इसका लेस देन और इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब इसका आना चाहिए जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, माने एक छोटा होता है एक बड़ा होता है जनरली, है ना, इसलिए हमने ना इसके हिसाब से इनइक्वालिटी बनाया है। अच्छा, since this is always less than or equal to 1 and this is always greater than or equal to 1, एक 1 से छोटा रहेगा हमेशा, एक 1 से बड़ा रहेगा, इक्वल टू एट द सेम टाइम, तो दोनों राशि कहाँ होंगे, ओनली व्हेन 1 plus sin raised to 4x is equal to 1 and cos raised to 5x is equal to 1, इसका मतलब cos x is 1, यहाँ sin raised to 4x is 0, माने sin x is 0, माने x is n pi, एंड वो बीच में एंड है, और इसके हिसाब से cos x 1 कब होता है, x is equal to 2n pi,
है ना? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि x n पाई चाहिए और ये लोग बोल रहे हैं कि x चाहिए 2 n पाई। अब बताओ दोनों कहाँ राजी होंगे? 2 n पाई पे पक्का श्योर? क्योंकि ये देखो n पाई पे साइन तो जरूर 0 हो रहा, लेकिन cos हो सकता है +1 या -1। रिमेंबर n पाई का मतलब कौन से वैल्यूज? ये इधर गए ना 0 एज वेल एज पाई। देखो यहाँ cos -1 होता है, लेकिन cos हम अपने को +1 चाहिए, तो इसलिए इधर के सारे रिजेक्टेड है और मल्टीपल्स ऑफ पाई वाले रिजेक्टेड है, सिर्फ ये वाले चाहिए अपने को। सो सिर्फ ये चलेगा, सो 2n पाई। या आप वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो। इसका आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसका आएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ओके, दिस शुड बी योर सॉल्यूशन सेट, है ना? कॉमन रिमेंबर एंड है, माने हम सिर्फ कॉमन सॉल्यूशंस कंसीडर करना होगा। वी ओनली इंटरेस्टेड इन कॉमन सॉल्यूशंस जहां दोनों भी सैटिस्फाइड हो। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो वी हैव बीन गिवन कि cos x into sin y is equal to, we have been given कि cos x into sin y is equal to 1, right? So it is pretty obvious actually, isn't it? कैसे? अच्छा, हम जानते हैं कि cos x हमेशा less than or equal to 1 and sin y भी हमेशा less than or equal to 1। तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, इनका जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू 1। बट इट इज गिवन कि cos x into sin y is equal to 1। तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब दोनों 1 हो, है ना? क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये 1 से छोटा हो गया ना, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू भी 1 से छोटा होगा। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 तभी होगा जब दोनों 1 हो। अगर एक भी 1 से छोटा हो गया ना, फिर ओवरऑल वैल्यू भी 1 से छोटा होगा। एंड देयरफॉर cos x is 1 and sin y is equal to 1। cos x 1 कब होता है? जब x is 2n पाई, अभी किया हमने। और sin y कब 1 कब होता है? जब y is कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास, है ना? 4n + 1 into 5, इज इट राइट? अच्छा, तो बेसिकली क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेथड से सॉल्व हो रहा है करके? ये अभी ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, हमने तो ऑलरेडी लिख चुके बाउंडेडनेस या एक्सट्रीम वैल्यूज करके, और उसके जितने भी क्वेश्चंस थे अपना बाकी के बुक्स में, मैंने वो सारे क्वेश्चंस उठाया और मैंने एक जगह पे सॉल्व करवाया। अगर यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपको थोड़ी ना पता होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है करके, तो ना आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाउंडेडनेस के हिसाब से चल रहा है करके? तो इसलिए ना हमेशा जब भी देखो दोनों तरफ से इवन पावर हो या जब ज्यादा डिग्री होता, जैसे कि देखो डिग्री 8 है यहाँ, डिग्री 4 है, डिग्री 5, तो इन सच केसेस ऑलवेज कीप एन आई कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में है, ये 1 के ये वाला जो है 1 to infinity, तो ये मिनिमम 1 है, ये मैक्सिमम 1 है ना? और रिमेंबर ये ना मेंस वालों का फेवरेट टाइप है एक्चुअली, दे डू आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप, है ना? तो क्योंकि ऑलरेडी हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट तो किया ऑलरेडी, इजंट इट? कि आप जानते हो कि इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, वी डू नो दिस, इजंट इट? तो ना कीप एन आई ऑन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? ओके, ओके गाइस, सो शायद से और 2 या 3 टाइप है मुश्किल से, वो हम बाय टुमारो विल फाइंड आउट।